doesn't like free entertainment? I mean, फ्री में आओ, फ्री में घूमो, पैसे देके थोड़ा बहुत खाओ, लेकिन फ्री की एंटरटेनमेंट लो, वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त. I mean, I'm totally loving it. Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are about to go to some other place, and as you might be aware of by now by the title, so I'm going to University of Tokyo, where my husband works, and now I'm almost ready. I just need to put shoes और कुछ खाना रख लेते हैं रास्ते के लिए, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों को मिलना मुश्किल है जापान में खाना. पर हम इस पे भी आगे कुछ वीडियोस बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स, कुछ ऐसी प्लेसेस, कुछ ऐसे खाने के स्पॉट्स पता है वेयर यू कैन हैव समथिंग टू ईट, एंड इट्स क्वाइट वीक. some are vegan, some are vegetarian. So today let's go to University of Tokyo. See you soon. आपको भी लग रहा होगा कि मैं यहाँ प्रायोरिटी सीट पे क्यों बैठी हूँ. बेसिकली दिस इज़ अ प्रायोरिटी सीट एंड हियर इज़ द साइन like on the very edge of every car in the Japanese train. You'll find this kind of a seat where people with disabilities or anybody with any trouble with children or pregnant can sit here. So yeah, I have my own thing right now. Maybe I'll tell you soon. This is the priority seat sign I was talking about. Okay, so we are in the place called Moss Burger, where you can find different kind of burgers, but obviously we are vegetarian, so we need to look for something in veg. This is their green burger, and this is soy based, so any one of you who can eat soy can have this patty, and it's like delicious. So we'll eat it and let you know the taste and how it is. But for now we are hungry and we need to have something, and it's about to rain outside, so I think it's better to eat. My husband is searching the payment method right now, so you can have many kind of methods here, like you can pay by card or cash, or many apps are there like PayPay, Kuopay and all that. This is the upper part of this cafe. Here you have like self-service mostly. You can take water, you can take different amenities like tissues and all by yourself. Yeah, I'm hungry. So this is the kind of buzzer you get. और ये बज गया हमारा बर्गर, एंड माई हस्बैंड विल गो एंड गेट आवर बर्गर्स. हाय एवरीवन. तो जब तक हर्ष गए हैं बर्गर लेने, लेट मी टेल यू दैट आई हैव ऑर्डर्ड vegetarian burger here. It's like a soy patty and it's much like a regular burger. It's quite delicious. So और बाकी आज हम कहीं जाने वाले हैं स्पेशल जगह. मैंने आपको बोला था हम न्यू टोक्यो जा रहे हैं, बट हम न्यू टोक्यो नहीं जा रहे हैं फिलहाल. maybe after if we get some time we can go, but we will go to some other nice exciting place. First eat. Our burger is here. Looks delicious to me. It's like, it says Moss plant-based burger. Has a soy patty and some veggies. And this sauce has two kind of sauce. It's one spicy and one mayonnaise, and you can just pop it and put it like that. It's like another kind of dipping style in this culture. Oh, already my mouth is watering.
Okay, let's eat. Bit sweeter, on the sweeter note, spicy as well, but definitely not as spicy as Indian. अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद है या बिल्कुल इंडियन बर्गर पसंद है, then you should, I think, prefer the combini one, which is a bit more spicier than this. Or else, if we find some other burger more spicy than this, we'll let you know. So we are here at Harajuku station. You can see big market like this. It's very famous Matsumoto Kiyoshi store. It's like a drug store, but you can find cosmetics and other beauty product as well. अब हम यहाँ से जाने वाले हैं योयोगी पार्क, जहाँ हमें आज टर्की फेस्टिवल देखने को मिलेगा। और आज का फेस्टिवल मैंने भी कभी टर्की का इतना कुछ ज़्यादा देखा नहीं है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और वो पार्क एक्चुअली ऐसा है कि वहाँ आप जब भी जाओगे यू कैन फाइंड डिफरेंट फेस्टिवल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, और उसकी वजह से आपको नया नया कल्चर देखने को मिलता है, बहुत नए लोग देखने को मिलते हैं, और खाना पीना सब कुछ। इफ़ यू वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स, वांट टू एटलीस्ट सी न्यू पीपल, इफ़ यू डोंट वांट टू इवन हैव लाइक बिकम फ्रेंड्स विद देम, सो इट्स अ नाइस प्लेस। तो अभी चलते हैं, बारिश तेज़ हो रही है, हम लोगों ने अपना छाता ले लिया है सब यहाँ छाता लेके ही निकल रहे हैं। ये स्टेशन का मेन एंट्रेंस है, और यहाँ सिर्फ योयोगी पार्क का ही रास्ता नहीं है, यहाँ दो चीज़ें हैं। इधर यू कैन गो टू योयोगी पार्क, और देयर इज़ अ shrine called Meiji Jingu Shrine, which is like a very famous shrines here, and you can find Meiji Jingu at various places in Japan. One such shrine is here at Harajuku, very next to the station. This is the main entrance gate of the shrine. आज हमारा श्राइन जाने का तो मन तो है, लेकिन आज हम योयोगी पार्क जाने के लिए आए हैं। यू कैन सी द गेट कॉल्ड तोरी इन जैपनीज़। तो हम इसके अंदर अगर जाएंगे तो ये बहुत लंबा रास्ता है, फिर अंदर जाके कहीं श्राइन आएगी। तो किसी दिन यहाँ भी चलेंगे, पर अभी इसके जस्ट अपोजिट साइड से आपको मुड़ जाना है और सीधे चलते जाना है। फिर यहाँ सीधे जाके विल टर्न टुवर्ड्स राइट, एंड देन योयोगी पार्क वेयर द इवेंट इज़ हैपनिंग विल बी देयर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोक्यो में, स्पेशली 24 वार्ड्स ऑफ टोक्यो में फॉरेनर्स बहुत हैं। यहाँ ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आप जापान में हो, फीलिंग ही थोड़ी अलग है। और इस तरीके की अजीब सी बिल्डिंग्स भी मिलेंगी। आई एम कॉलिंग इट अजीब क्योंकि सच में आर्किटेक्चर की अलग ही लेवल है यहाँ। तो अब हम ही राइट में मुड़ गए हैं, स्टेशन से सीधे चल के टुवर्ड्स राइट। योयोगी पार्क बेसिकली बहुत बड़ा पार्क है। इट एक्सटेंड्स लाइक फ्रॉम योयोगी टिल आई थिंक वो है हाराजुकु स्टेशन, और ये यहाँ से इसका एंट्रेंस है योयोगी पार्क का। अगर आप पार्क में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ चले जाओ, इसका एक सेपरेट इवेंट हॉल है जहाँ हम आज जा रहे हैं। तो
उस इवेंट हॉल में मोस्टली फेस्टिवल्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं रिलेटेड टू सम डिफरेंट कंट्रीज और सम ग्रुप्स और लाइक समटाइम्स सम रॉक बैंड्स ऑफ जापान। तो आपको भी अगर यहाँ आके दूसरी कंट्रीज़ का कल्चर, उनके कस्टम्स और उनके ट्रेडिशनल आउटफिट्स ये सब देखना पसंद है और आप सच में बोर हो चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा मैं आज क्या करूं या आज कुछ ऐसा खास कोई कुछ हो नहीं रहा है, बट यू वांट टू एन्जॉय, हैव सम एंटरटेनमेंट, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द वेबसाइट ऑफ योयोगी पार्क इवेंट हॉल और वहाँ आपको ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ के इवेंट मिल जाएंगे। तो हमें अच्छा लगता है वहाँ जाना। बिल्कुल। ये पार्क बहुत बड़ा है और अलग अलग जो इवेंट होते हैं आपको यहाँ पे फूड स्टॉल मिलेगा, उनके कल्चरल परफॉर्मेंस होंगी और ड्रेसेस वो लोग रखते हैं अपने कंट्रीज़ की, और जितना उनकी आर्टिस्ट स्किल्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्टिफैक्ट्स और कुछ ऐसे प्रमोशनल स्टॉल्स भी मिल जाएंगे जो वो आपको ऑफ़र करते हैं कि इफ़ यू विज़िट देयर कंट्री दिस शुड बी द थिंग्स यू शुड ट्राई और हेयर यू कैन गो। तो अगर आप लिटरली सिर्फ फ़न के लिए जाना चाहते हैं तब भी जा सकते हैं, और अगर आपको कुछ नया खोजना पसंद है, कुछ नया देखना पसंद है, देन डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू चेक इट आउट एटलीस्ट वंस। इनफैक्ट मैं अपने कुछ जैपनीज़ फ्रेंड्स के साथ वहाँ गई थी एक बार, इवन दे डिडंट नो दैट कि यहाँ पे इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, एंड दे वर वेरी हैप्पी, दे वर लाइक वी कैन कम हेयर अगेन। और ये जा रही हॉप ऑन बस ऑफ टोक्यो। जैसा मैंने बताया था कि योयोगी पार्क बहुत बड़ा पार्क है, ये हमारे बराबर से हम योयोगी पार्क के बराबर ही चल रहे हैं, बिल्कुल एडजेसेंट। टोक्यो में बेसिकली आपको ऐसा ही दिखाई देगा। टोक्यो अब बहुत क्राउडेड है, लेकिन अभी भी सम हिडन स्पॉट्स आर देयर। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप अपना टाइम, अपना फ्री टाइम, अपना लेजर स्पेंड कर सकते हो। और यहाँ पे NHK का ऑफिस भी है, और एक ये आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट हॉल है। यहाँ पे ज़्यादातर J-pop, K-pop इनके म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स चलते हैं यहाँ मोस्टली। यहाँ हम कभी गए नहीं हैं क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टैंड इन दोज लाइन्स एंड हमें उतना शौक़ नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता है। बट हाँ, किसी दिन अगर ट्राई करेंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। मैंने कहा था कि ये योयोगी पार्क के बराबर हम चल रहे हैं, और अब आप देखो यहाँ पे जस्ट इसके ऑपोजिट यहाँ आपको स्टॉल्स दिख रही होंगी, आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी अगर कोई इवेंट उस दिन होगा तो आप ये क्रॉस करोगे एंड वी विल बी एट टर्की फेस्टिवल। ये और जापान में ऐसे ग्रीन लाइट हो तो आप निकल सकते हो, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट, रेड लाइट होते ही रुक जाने का। ये आ गए हम योयोगी पार्क इवेंट हॉल। ये इस पार्क का मैप है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आपको जैपनीज़ आती है तो आप यहाँ से पढ़ लो, वैसे इंग्लिश में भी लिखा है, विच आई एम शॉक्ड अबाउट। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है क्योंकि ये टोक्यो है, बट हाँ आपको अगर यहाँ से देखना है यहाँ से देख लो, वरना आप डायरेक्टली वेबसाइट पे देख सकते हो कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि जर्नली वेबसाइट पे अपना फेस्टिवल प्रमोट करने के लिए रखते हैं कि यहाँ आएंगे तो ये मिलेगा, यहाँ आएंगे तो ये मिलेगा। ये इसका मेन एंट्रेंस है, तो लेट्स गो फ्रॉम हेयर। उधर भी स्टॉल्स लगी हैं, उधर भी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इनकी स्टॉल शुरू हो गई हैं। ये सब क्लोथिंग स्टॉल्स हैं। टर्की का पहनावा लुक्स लाइक क्वाइट बोहेमियन टू मी, लिटिल बिट इंडियन एज वेल इन स्टाइल।
इस तरीके के कलरफुल कपड़े यहाँ जापान में रेयर मिलते हैं। ये लोग बहुत मोनोक्रोम पहनते हैं, तो दे डेफिनेटली आर एक्साइटेड टू सी दिस। इस तरीके की कैप्स, बैग्स, और ये यहाँ के स्टॉल्स। फूड स्टॉल और सम क्रीचर्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टर्की का ही यहाँ पे सामान मिलेगा आपको। मेरे को लगता है कि जिन जिन की फूड स्टॉल्स यहाँ पे हैं, फूड ट्रक्स हैं, वो लोग अपना हमेशा ही ले आते हैं, क्योंकि ये अच्छा मौका है पैसा कमाने का, और व्हाई नॉट। ये टर्की की स्टॉल है, कोफ्ते इकमेक, बालिक इकमेक, और ये लोग भी डेफिनेटली टर्की से हैं। इनकी शक्ल से और इनके हाव भाव से पता चल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ खड़े होके कुछ देख रहे हैं, तो ये है इनका मेन ऑडिटोरियम और मेन स्टेज। ओह वाव, सो क्लोज। और ये यहाँ की खासियत जापान की, आई थिंक यहाँ पे कभी भी कोई भी इवेंट होता है इस तरीके का, तो आपको एक गार्बेज स्टेशन ज़रूर मिलेगा, और यू हैव टू डिवाइड योर गार्बेज अकॉर्डिंगली, लाइक वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट और पेट बॉटल्स, एंड यू कैन नॉट थ्रो इट हेयर एंड देयर, जो कि मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में भी आ जाए। पता नहीं कब आएगा, लेकिन हाँ, अगर हम लोग सब खुद से कोशिश करें और अपना गार्बेज अपने साथ लेके चलें, रास्ते में ना फेंकें, तो ज़्यादा बेटर है। और ये तुर्की की कुछ आर्टिफैक्ट्स, कुछ पहनावे, और स्मोकिंग एरिया भी है इफ़ यू स्मोक। तो एक तो मेन स्टेज वो थी, और एक अभी हम जहाँ जा रहे हैं इधर भी एक स्मॉल स्टेज लगती है। अभी आवाज़ भी आ रही है, कोई या तो गा रहा है या कुछ परफॉर्मेंस चल रही है। उधर दूर वहाँ पे भीड़ लग रही है, मुझे लगता है वहाँ कोई गा रहा है। आज बारिश हो गई है इसलिए शायद लोग थोड़े कम हैं, अदरवाइज़ ये बहुत क्राउडेड रहता है। Here it is, ये लोग यहाँ गाना गा रहे हैं और कुछ लोग डांस कर रहे हैं।
How cute! एक्चुअली ये थाईलैंड फेस्टिवल है, उधर तुर्की फेस्टिवल चल रहा था. आई डिडंट नो कि यहाँ पे 2 फेस्टिवल्स हैं आज, विच इज़ अगेन अ बूस्ट. इधर सब थाई फूड है. สูตรใหม่เลยนะเนี่ยมีหนึ่งเพลงแนะนำขึ้นมาด้วยนะคะเพลงคลื่นใช่ไหมคะ Saying namaste to us because मुझे लगता है वो समझ गई कि हम इंडिया से हैं. คนยังถามไม่คิดอะไร She is so cute. ไกลไกลกันไปแต่ก็ไม่ได้ชิดกันกว่านี้จนได้มาถ้าไม่ผิดหวังใจเธอพังไม่มีชิ้นดีก็อยู่ยังคนไกลไกลทันทีจะเจ็บอย่างนี้ให้ทนได้อย่างไร Oh wow, what is this? Who are they? अगर कुछ लोगों को पता है तो ज़रूर बताना वीडियो में. रॉयल जॉर्जिया, ये जॉर्जिया फेस्टिवल है और ये लोग कोई वहाँ के लोग हैं या कोई डेलीगेट्स हैं या कोई रॉयल्टी हैं जो यहाँ आए हुए हैं वहाँ से. Давай спросим. ये योयोगी पार्क का सबसे बड़ा एरिया है, सबसे लंबा एरिया है जहाँ पे फूड स्टॉल लगे रहते हैं. यहाँ पे ये वाइन बन रही है, प्योर वाइन. और जो भी फेस्टिवल होता है वो इतने बड़े एरिया में आके अपने स्टॉल्स लगाएंगे हर जगह. ये बैठ के खाने का एरिया है. यहाँ पे आज भीड़ थोड़ी कम है. अभी जो हमने पीछे स्टॉल देखे थे वो जॉर्जिया के थे और थाईलैंड के थे और तुर्की के थे. तो इन जॉर्जिया के स्टॉल्स हैं. अभी जॉर्जिया अर्की, व्हाट इज अर्की? हम थोड़ा पास जाके देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है. ये किसी तरह की एल्बम और सीडीज़ मिल रही हैं यहाँ पे. और कॉस्ट्यूम्स रखे हुए हैं. और ये शायद लकी चार्म है या कॉस्ट्यूम. ये जॉर्जिया आर्टिकल करें. आगे ज़्यादा कोई और स्टॉल्स नहीं है. ज़्यादातर इन्होंने यहाँ पे अपने यहाँ की विस्की और बियर और शायद जैपनीज़ फ्लेवर मिला के निहोंशु बनाई है. टू जापान. तो ये यहीं तक थी. अभी इसके आगे भी बहुत बड़ा है ये. तो जब बहुत बड़े फेस्टिवल्स होते हैं तो बहुत दूर तक स्टॉल्स लगी हुई होती हैं. आज ये यहाँ तक है, लेकिन आज यहाँ पे हमें 3 फेस्टिवल्स देखने को मिल रहे हैं, लाइक तुर्की, जॉर्जिया एंड थाईलैंड, विच इज़ ग्रेट. आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट. ये जॉर्जिया फेस्टिवल की स्टॉल है, लाइक स्टेज.
जहाँ पे यहाँ के लोग परफॉर्म करेंगे। तो टिपिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये एरिया पूरा, और इस तरीके से मैनेज कर रखा है कि अलग अलग कंट्री आके अपनी स्टॉल्स लगा सकती हैं, अपना फूड, आर्टिफैक्ट्स, अपने ट्रेडिशनल वेयर, समथिंग लाइक दैट, विच इज़ ग्रेट। और इधर यहाँ पे टॉयलेट भी है इधर जाके, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये इनकी एक एस्टैब्लिश्ड शॉप है जहाँ पे हमेशा ही खाना पीना मिल जाता है, तो अगर कुछ फेस्टिवल ना भी हो रहा, आपको सिर्फ यहाँ घूमने के लिए आना हो तो आप आ सकते हो। एंड दे आर अगेन एंजॉयिंग। ये थाईलैंड के कपड़े। हाय। अब हम लेने वाले हैं बबल थाई मिल्क टी यहाँ से। नमस्ते। नमस्ते। थोड़ी मीठी ज़्यादा है, थोड़ा सिनेमन का टेस्ट है, सिनेमन का टेस्ट ज़्यादा है, बट इट्स डिलीशियस। और गर्मी में ठंडी ठंडी मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और है। ट्राई करके अब हम ले रहे हैं मैंगो कोकोनट स्मूदी फॉर 600 yen। लुक्स डिलीशियस टू अस। तो अभी यहाँ एक और परफॉर्मेंस होने वाली है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। अभी ये आदमी जैपनीज में यही सब बता रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्या होगा, एंड प्रोबेबली इट विल बी अनदर ग्रुप सॉन्ग, सो लेट्स सी इट। So the performance is about to start.
अनदर लेवल, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। लाइक ये दोनों औरतें इतनी देर से घूम रही हैं और एक तो बिल्कुल अपना लाइक सिर भी घुमा रही है साथ में। इट्स लाइक वेरी लाइक ट्रांस फीलिंग, सम काइंड ऑफ एक्सॉर्सिज्म और समथिंग, है ना? ये तो है, इनमें से जो नीली ड्रेस में लेडी है वो बहुत देर से गोल गोल तेज घूम रही है, तेज घूम रही है और गर्दन भी बिल्कुल पूरा घुमा रही है। और बहुत देर हो चुके हैं, 10 मिनट से घूमने जा रहे हैं लोग, कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं। कम से कम 20 मिनट्स हमें हो गए देखते हुए और अभी तो पता नहीं कितनी देर में ख़त्म होगी, क्योंकि पहुँचेगी। राइट, कला आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और इतना बैलेंस है इन लोगों में कि इतना देर घूमने के बाद, 20-30 मिनट घूमने के बाद भी ये लोग अभी भी खड़े हुए हैं, लाइक डिफाइंग द इनर्शिया नाउ। सारे न्यूटन के प्रिंसिपल ख़राब है इनके सामने। टू गुड, टू गुड, टू गुड। That's it for today. I hope you liked it. Like we enjoyed a lot. यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हमने देखे और अभी काफ़ी अच्छे डांसेस हुए हैं फ्रॉम जॉर्जिया, थाईलैंड एंड ऑल्सो टर्की, एंड बहुत मज़ा आया। तो हम ये बताना चाहते थे कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप आ सकते हो और यहाँ आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कंट्री की चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ ज़रूर आओ। Do come here and check what all this place has to offer. Not many people know about it. Actually, even I didn't know about it. मैं ऐसी चीज़ें ढूंढती रहती हूँ तो मुझको पता चला, और जब मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया, कुछ जैपनीज़ फ्रेंड्स को बताया, वो खुद शॉक हो गए कि जापान में डिफरेंट कल्चर की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो I hope you will find this video very informative for those especially who love art
and him full of different cultures. So do check it out, and I'll see you in my next one. Bye.